So, good afternoon to everyone. Class 6C. Let me write the class also here. Class 6C. The lesson we are doing, that is separation of substances. Separation of substances. We have seen that what is the requirement of separating substances. There are various purposes for separating substances to use them in our daily life. For example, in hospitals, pure oxygen is required, and the pure substances in the form of medicines are required. For mountaineers, for divers, also pure oxygen is required. And in our food, in cooking also, we require to clean our foodstuffs like rice, dal, which are mixed with pebbles or other things. So there are different methods of separating the substances to separate the impurities inside or what is not required in our food materials. And you have done till now, that is different methods like hand picking, threshing, winnowing, sieving, magnetic separation, sublimation. These were the methods to separate solid-solid mixture. Now we are doing mixtures of solids with liquids. How to separate mixtures of solids with liquids? To separate mixtures of solids with liquids. Under this topic, till now we have discussed evaporation method. Solids which dissolve in liquids, जैसे कि नमक हो, चीनी हो, पानी में घुल जाते हैं, उसको यदि evaporate कर दे पानी को, we will get return back this salt and sugar by the method of evaporation. So how to do this evaporation method? You will first dissolve the substances very nicely, and as you can see in your book, in your figure also, the China dish. In the lab, it is done with the help of China dish. कैसा setting है वो China dish का? So just now we are discussing about the method, that is evaporation. Evaporation. How to set the apparatus? हम लोग क्या करते हैं कि लैब में लेते हैं चाइना डिश, और इसमें तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट्स है, मान लो कि सुगर विथ वाटर, सुगर प्लस वाटर, sugar with water. Then this one is put on a burner, on a tripod stand. Tripod stand तीन टांग जिसके होते हैं, like this it goes on. और यहाँ पे है वायर गेज, तार का जाली बना रहता है जिसपे कि चाइना डिश को हम लोग डाल देते हैं. So this one is called as China dish. अब बर्नर यहाँ पर लगा दो, बर्नर से ये होगा, the flame you can see here, the flame. So when you heat it, you can see the whole diagram. What happens? Take a glass beaker and fill it half with water. Add 4 teaspoonsful of salt to it or sugar. Stir it well till the sugar dissolves in water. Transfer this sugar solution into a China dish. Heat it over a burner. Water starts evaporating. When almost all the water has evaporated, put off the burner and observe. White particles of sugar are left behind in the China dish. इसमें तुम लोग यदि करते हो तो सॉल्ट लेकर के करो, क्योंकि यदि शुगर ज्यादा जल जाएगा सूखने के बाद तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है. Get stick to the container. तो यहाँ पर बेहतर होगा कि तुम लोग जैसे बुक में दिया है सॉल्ट, नमक ले लो तो ज्यादा अच्छा है.
यदि घर में करते हो तो शुगर लेके मत करना, यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ले लेते हैं तुम्हारे बुक के अनुसार। This method is commonly used to obtain common salt that we use in our food from sea water. समुद्र में नमक कैसे जमा करता है? समुद्र में जब नमक लेना है तो इस सवेरे के समय पानी में एक कपड़ा जो है डाल देते हैं, ठीक, और दोनों तरफ से ऊंचा कर दिया। धीरे धीरे दोपहर आते आते क्या होता है कि सारा पानी इवोपरेट कर जाता है सूर्य की गर्मी से। जब वो सारा पानी इवोपरेट कर गया तो कपड़े पे व्हाट इज लेफ्ट ऑन द क्लॉथ, चादर वगैरह कुछ भी, साड़ी चादर कुछ भी डाल देते हैं वहां पे, तो उससे क्या होता है कि नमक जम जाता है कपड़े पे, ठीक, कपड़े पे नमक जमेगा एंड दैट सॉल्ट इज कलेक्टेड। सॉल्ट कुछ कुछ मिक्स रहेगा थोड़ा गंदगी वगैरह से, तो सी वाटर से जो नमक जमा करते हैं वो इसी मेथड से, इवोपरेशन मेथड से जमा करते हैं इन लार्ज अमाउंट। उसके बाद यदि उसको रिफाइन करना है तो फैक्ट्री में जाके उसकी और सफाई की जाती है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग नियर द सी, या फिर उसको गड्ढा खन के वहां पर डाल देते हैं कपड़ा, उससे भी जमा हो जाएगा नमक। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स इन इवोपरेटिंग वाटर लिविंग बिहाइंड द पार्टिकल्स ऑफ सैंड। Do you know, on an average, a liter of seawater has about 36 ग्राम of edible salt in it. 1 लीटर सी वाटर में 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट निकलता है, बस इतने निकलता है 1 लीटर पानी में निकालोगे तो। क्रिस्टलाइजेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू obtain pure solids from a given solution. For example, the salt we get from seawater has many impurities in it. अभी जिस मेथड से ऑब्टेन किया सॉल्ट उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंप्यूरिटीज होते हैं। लेकिन यदि क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ऑब्टेन किया जाए सॉल्ट तो उसमें इंप्यूरिटीज का चांसेस कम होगा। अब ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैसा है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। टू रिमूव दीज इंप्यूरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन अंडरलाइन करोगे बुक में ही। Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. Saturated solution क्या है? अभी पिछला लेसन में तुम लोग पढ़ा solubility और saturated solution। एक बार फिर से बता दिया जाए कि saturated solution कैसे तैयार होगा। मान लो कि 1 कप पानी लिया, उसमें 1 चम्मच हम लोग नमक घोलें, उसके बाद उसको स्टेयर कर दोगे स्पून से या कोई भी स्टेरर से, उसके बाद दूसरा चम्मच हम लोग डालेंगे, फिर तीसरा चम्मच डालेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब नमक या चीनी घुलना पानी में बंद हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या है? व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सैचुरेटेड? द सॉल्युबिलिटी एज वी कैन टेल इज the maximum amount of salt that has been dissolved in that solution is called solubility of that substance in that solution. अब दो यहाँ पर टर्म यहाँ पर देखा, रिन्यू किया, that is saturated solution and solubility. अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करोगे, तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस होगा कि जब उसको ठंडा होने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो नमक उस पर दिखने लग जाता है। जैसे कि नींबू का अचार देखा होगा कि उसका पानी जब धीरे धीरे करके सूख जाता है, उसके ऊपर नमक, सफेद सफेद नमक नजर आने लग जाता है। या फिर चीनी में कोई चीज बना हुआ हो, शक्करपारा जैसे कहते हैं हम लोग, तो उसका भी वही तरीका है, पूरा पानी जो है, चीनी जो है सुखा दिया जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल पानी जब सूख जाएगा, देन दिस वन फॉर्म्स सुगर क्रिस्टल्स। So in the same way, sugar or salt crystals are obtained. It does not contain any impurities. होगा क्या कि वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो impurities हैं वो पीछे के पीछे रह जाएंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे। Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals. So you have studied now the new word, that is crystallization.
crystallization. इसको एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो. Process which separates a pure solid in the form of its crystals. क्रिस्टल सब लोगों ने देखा होगा. क्रिस्टल सिर्फ चीनी या नमक का नहीं होता है. कभी कभी एक माला में बना करके लोग पहनते हैं, वो शाइनिंग सा टुकड़ा सा रहता है, तो वो भी क्रिस्टल कहलाता है. तुम्हारा हीरा भी है, वो भी तुम्हारा क्रिस्टल फॉर्म में है. एक तरह से कटिंग ऐसी की जाती है या फिर खुद ब खुद तैयार हो जाता है जो उसका शाइनिंग नजर आए. From a saturated solution. Now the following activity explain the process in detail. Take 100 milliliter of water in a beaker. अब इसे हमें करना क्या है? हम लेते हैं 100 milliliter of water in a beaker. This one is the beaker. Here you will take 100 milliliter of water. Okay. Then prepare a saturated solution of sugar in it. इसमें डिसॉल्व कर देना है सुगर. सो इसको लिखेंगे सुगर सॉल्यूशन. सुगर सॉल्यूशन. So prepare a saturated solution of dissolving sugar. For this, keep on mixing sugar in water until it can dissolve no more of sugar. जब तक उसमें चीनी घोलना है, जब तक कि उसमें चीनी घुलना बंद ना हो जाए. ट्रांसफर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश. अब सेकंड पिक्चर में हम लोग चाइना डिश जैसे पहले लिए थे उसी तरह से चाइना डिश में सुगर सॉल्यूशन को ले लेना है. सुगर सॉल्यूशन हियर. अब इसको क्या करना है? अगेन द सेम apparatus. इसमें थोड़ा और क्लियर बना हुआ है तो apparatus को क्लियर कर देखो. ये हो गया वायर गेज. ट्रिपॉड स्टैंड. यहाँ पे बर्नर. ये हो गया बर्नर. अब देखो इसको चलाते जाना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है, बराबर इसको चलाते जाना है. कोई भी चम्मच या कोई भी चीज लेकर के बराबर चलाते जाना है, नहीं तो जो तुम्हारा पर्पस है वो नहीं होगा. रॉड विथ क्रिस्टल्स ऑन इट. एक रॉड नमक के केस में चल जाएगा लेकिन शुगर के केस में चलाना ही पड़ेगा. यहाँ पर रॉड को जब निकाल के देखोगे अलग से, इस रॉड को जब हम लोग अलग से निकाल के देखते हैं तो यहाँ पर नमक जमा हुआ नजर आता है. ऐसा तुम घर में भी एक बर्तन में मम्मी के सामने कर सकते हो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है. ठीक. नेक्स्ट में allow the solution to cool without disturbing. When small crystals, नहीं थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे. Stir the solution occasionally with a glass rod. Occasionally means बीच बीच में उसको चलाते रहना है. When small crystals start appearing on the glass rod, और चलाते रहोगे तो तुम्हारा चम्मच या ग्लास रॉड पे नजर आएगा क्रिस्टल्स. स्टॉप हीटिंग द सॉल्यूशन. जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए तो हमें हीटिंग करना बंद कर देना है. जाहिर है कि वो बढ़िया से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, अब वो हल्का सा भी ठंडा होगा तो क्रिस्टल में बदल जाएगा. अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग इट. अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो लेकिन उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है. स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर विल अपीयर इन द चाइना डिश. So you will find small crystals of pure sugar will be collected in the China dish. Crystallization is often used for purification of salt we get from the sea. समुद्र से जो सी मिलता है उसको भी हम लोग इसी तरह से crystallization मेथड से साफ सुथरा नमक ऑब्टेन करते हैं. We can also use this process to separate out crystals of alum. फिटकरी के बारे में सुना होगा. फिटकरी तुम्हारा कट जाए वहां पर लगाओगे, थोड़ा सा एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है. एकदम हल्का मात्रा में यदि पानी में घोला जाए तो पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है वो तेजी से बैठ जाता है. तो एलम, इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं और हिंदी में फिटकिरी. एंड ब्लू विट्रियोल. एक और है ब्लू विट्रियोल जिसका कॉमन नेम है नीला थोथा, जो कि
कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होगा, लेकिन वो तुमको मार्केट में नहीं मिलेगा, वो सब्जी वगैरह डुबा देता है जो कि जहरीला होता है. From their impure samples, separating solids that do not dissolve in liquids. Next topic comes your to जो solids, the solids which do not dissolve in liquids. पानी में वो घुलते नहीं हैं, बल्कि वैसे ही के वैसे ही नजर आएगा. चलो अब उसको भी देख लें हम लोग. Separating solids that dissolve in, that do not dissolve. तो इसमें तुम्हारा ये सब प्रोसेस काम नहीं आएगा. उसमें क्या काम आएगा? फिल्ट्रेशन मेथड. तो अब हम लोग फिल्ट्रेशन है, डिकैंटेशन है, सेडिमेंटेशन है, ये सब मेथड पढ़ेंगे. एंड द हेडिंग इज सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड्स. सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट dissolve in liquids. जो डिजॉल्व नहीं करते हैं. देखें कौन सा है. Some solids do not dissolve in a liquid. For example, tea leaves, chalk powder, sawdust, and pulses are all insoluble in water. जैसे कि चाय पत्ती, चॉक पाउडर, सॉडस्ट लकड़ी का चूरा, पल्सेस आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर. ये सारे के सारे तुम्हें भी पता होगा कि पानी में घोलोगे तो वो घुलेगा ही नहीं. द कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स. Sedimentation and decantation. The first method is sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation. अब ये सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन क्या है, लेकिन सबसे पहले हम लोग मेथड लिखेंगे. दूसरा मेथड है लोडिंग. दूसरा मेथड हो गया लोडिंग. और तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड हो गया तुम्हारा फिल्ट्रेशन. फिर सेंट्रीफ्यूगेशन है और 4 मेथड है यहाँ पे. लोडिंग, 3 में लिख दें फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, और जो 4th हो गया दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation. Yes, everything is visible. These 4 methods we will discuss now. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. Sedimentation. At first, sedimentation. Let us take the example that some sand is dissolved. Take a spoon of salt or 2 spoons of salt and dissolve it in water. It will not dissolve. What will happen? It will all settle down at the bottom. So the settling of these insoluble particles is known as sedimentation. You can find in your books, sedimentation is a process by which insoluble, heavy solid particles in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time. So this is known as sedimentation. Settling down of the insoluble particles on its own in a solution is known as sedimentation. For example, settling of sand in water. Sand in water. Then there are other things also. Then what are the sediments? In order to separate out the two, the liquid has to be gently poured into another container without disturbing the settled down solid particles or sediments
अब ये सेडिमेंट्स क्या है, चलो बीकर में देखते हैं हम लोग। यहां पर लिया है तुम्हारे बुक में मडी वाटर, ठीक है, हम लोग भी मडी वाटर ही ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मडी वाटर। अब मडी वाटर का क्या स्वभाव है, उसमें क्या होगा कि मड जो है कुछ तैरते हुए दिखेंगे और कुछ नीचे बैठ जाएंगे। दूसरे एक पिक्चर में है सैंड सेटल्स डाउन एज अ सेडिमेंट, सो कोर्स पार्टिकल्स। अब जब नीचे में जो बैठ जाता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, some particles settle down, so the coarse particles settle down, जैसे कि मान लो कि सैंड है, coarse particles, इस कोर्स पार्टिकल्स को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्स जो नीचे बैठ गया उसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ऊपर में पानी है, अब क्या है, फाइन पार्टिकल्स, इसका एक लेयर और होगा, कुछ फाइन पार्टिकल्स तैरते हुए दिखेंगे, तो यहां पर लिखोगे फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, और ऊपर में पानी होगा, तो ऊपर में जो पानी है वो हो गया क्लियर वाटर। हालांकि हम लोग क्लियर वाटर कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। सो जस्ट नाउ यू हैव सीन द व्हाट इज सेडिमेंटेशन, व्हाट आर सेडिमेंट्स, एंड नाउ वी विल सी डिकैंटेशन। थर्ड मेथड है तुम्हारा डिकैंटेशन। जो ये पानी है ऊपर से, इसको अब हमें क्या करना होगा कि दूसरे बीकर में डालना है। कैसे डालना है, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस सी हियर। इसको भी बहुत सावधानी पूर्वक थोड़ी देर के लिए उसको अच्छी तरह से छोड़ दो विदाउट डिस्टर्बिंग, मेथड में दिखाया है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे तुरंत अभी सेडिमेंटेशन। एक्टिविटी 4, take some water in a beaker, add some sand into it and stir. Let it stand undisturbed for some time in a beaker. After a few minutes, the sand particles settle down. This is sedimentation. Gently pour the clear water into another beaker without disturbing the layer of sand particles. This is decantation. Now let us decant it. Sedimentation अब हो गया decantation. ये जो तुम्हारा पानी था उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया, और जो पानी जो क्लियर वाटर है उसको एक हम लोग एक रॉड लगाएंगे, यहाँ से एक रॉड लगा दो, ठीक, और यहाँ पे बीकर से ये चलो थोड़ा ऊपर कर दें इसको, अच्छी तरह से एक बीकर से जो है पानी यहाँ पर से गिराना है, यहाँ से पानी जो है ड्रॉप वाइज यहाँ पे गिराना है। इससे धीरे धीरे गिराओगे तो इसका ये फायदा है कि उसमें ज्यादा मड पार्टिकल सैंड पार्टिकल नहीं आएगा, साफ सुथरा पानी आएगा, ज्यादा से ज्यादा जो इम्प्योरिटीज है उसका फिर मतलब रह जाएगा सेडिमेंट के रूप में। और जो पानी हमने निकाला, तो डिकैंटेशन का मतलब क्या होता है, डिकैंटेशन का मतलब होता है पोर करके पानी को अलग कर लेना, डिकैंट कर देना यानी कि खाली कर देना, ठीक, मतलब पोर करके, जैसे कि बीकर में देख रहे हो ये पोरिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ से, और दूसरा बीकर ये बीकर जो है खाली हो रहा है, तो इसी को कहते हैं पोर करके बीकर को खाली कर देता है, सो दैट इज नोन एज डिकैंटेशन। Sedimentation and decantation method are used for removing insoluble impurities from river and canal water. तो जो रिवर और कैनाल वाटर में जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, insoluble impurities, that is moreover broadly you can say साफ सुथरा पानी वहां से लेना हो तो इसी मेथड को यूटिलाइज करते हैं। They are used in water treatment plants that supply drinking water to our homes. और इस तरह से साफ करके
वो हमारे होम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके पहले इन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई भी की जाती है। जो मोटे इम्प्यूरिटीज हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा इम्प्यूरिटीज जो है, पहले उसको सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन मेथड से क्लियर कर देते हैं। और जो पानी बचा उसमें अभी भी बहुत सारे इम्प्यूरिटीज रहते हैं, उसको, उसमें केमिकल भी रह सकता है और अदर इम्प्यूरिटीज भी रह सकता है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके पानी को फिर से हमारे घर में, स्कूल में और ऑफिस में भेज देते हैं। In homes, when pulses and rice are washed before cooking, the water used for washing them is separated by sedimentation and decantation method. पहले चावल वगैरह में, चावल में, दाल में कंकड़ वगैरह, बीच में बालू, सैंड भी रहता था, अब भी रहता है कहीं कहीं से लो तो ये मेथड उसका बहुत अच्छा है, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। मम्मी को देखा होगा कि चावल और दाल साफ करते समय इसकी सफाई की जाती है। जैसे चरपाश पानी धोने के बाद पानी उसको डिकैंट कर दो, नीचे में जो पार्टिकल जो है, महीन महीन पार्टिकल सैंड वगैरह के, वो रह जाएंगे, वो बैठ जाएंगे तुम्हारे बर्तन में, बैठ जाएंगे पुराने बर्तन में। और जो बाकी दाल थोड़ा हल्का होता है वो सब आ जाएगा दूसरे बर्तन में। तो ये मेथड में हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। नाउ लोडिंग, नेक्स्ट प्रोसेस इज लोडिंग। So what is this loading method? Loading, आप कहोगे लोड मतलब होता है बोझा, सबको पता है। तो भाई यहाँ पर लोडिंग का मतलब क्या है? लोडिंग मीन्स सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स कभी कभी जल्दी नहीं बैठते हैं। जैसे मान लो कि मड पार्टिकल है, तो मड पार्टिकल जल्दी बैठेंगे नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए एलम ऐड करते हैं, फिटकिरी, बोले ना, बहुत हल्का मात्रा में। फिटकिरी को डायरेक्ट खाना नहीं है, अब पानी में डिजोल्व करना है तो बहुत हल्का सा मात्रा में उसको पूरे में चला दिया जाता है पानी में डालकर। तो क्या होता है कि जो मड पार्टिकल्स हैं वो तेजी से भारी हो जाता है, तेजी से भारी हो जाएगा तो सेडिमेंट्स, यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस काफी तेजी से होगा। सो लोडिंग इज sedimentation is a slow process and loading is a fast process. In this process, the final particles can take sedimentation में the final particles can take a long time to settle down. In order to speed up the sedimentation process, we often take help of loading. So what is loading? Loading speeds up sedimentation. चलो definition लिखते हैं. Loading is a process of loading is a process which speeds up, speed up sedimentation process. It speeds up sedimentation process. काफी तेजी से सेडिमेंट्स को बैठने में मदद करता है। by making light and suspended particles heavier, by using suitable chemicals. By using एलम के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, यूजिंग सुटेबल chemicals. And such chemicals का one example है alum. For example of such chemical, example
of such chemical H alum, जिसको कि कॉमन भाषा में हम लोग फिटकिरी कहते हैं। देखो कॉमन भाषा में हम लोग इसको फिटकिरी कहते हैं। एलम एक केमिकल है जो कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है। यहाँ पर ए जोड़ सकते हो, अ प्रोसेस विथ स्पीड्स अप सेडिमेंटेशन प्रोसेस बाय मेकिंग लाइटर एंड सस्पेंडेड हेवियर पार्टिकल्स। यहाँ पर लाइटर कर दो या फिर लाइट भी ठीक है, एंड सस्पेंडेड हेवियर पार्टिकल्स। यहाँ पर पार्टिकल छूट गया, यहाँ पर ठीक कर दें। heavier particles lighter and heavier particles by using यहाँ पर यूजिंग कर लो suitable by using suitable chemicals. Example of such chemical is alum. अब इसका प्रोसेस जो है आज भर के लिए for today this much is enough. You can see it very nicely.